Well, welcome to God's house. Amen. God bless you. Let's stand up. सारे खड़े होके खुदा के कलाम पढ़ेंगे. आखिरी किताब, आखिरी चैप्टर, आखिरी मैसेज. Book of Revelation, chapter 22, from verse 10 and onward. ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਹ ਪੋਥੀ ਦੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ. And he said to me, do not seal the words of the prophecy of this book, for the time is at hand. ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕੁਦਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਤ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਜਾਏ. He who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He who is holy, let him be holy still. ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. ਤਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ. Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. ਬਾਹਰ ਹਨ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਦੂਗਰ, ਹਰਾਮਕਾਰ, ਖੂਨੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ. But outside there are dogs and sorcerers and sexual immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practices a lie. ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਕੱਲਿਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੜ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ ਤਾਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਜਰ ਤਾਰਾ ਹਾਂ. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and the morning star. ਆਤਮਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਆਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੁਫਤ ਲਵੇ. And the Spirit and the bride say, come, and let him who hears say, come, and let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the waters of life freely. ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਗਮ ਵਾਕਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਤਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਧਾਵੇਗਾ. For I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗਮ ਵਾਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਵੇਗਾ. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ. ਆਮੀਨ. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਓ. He who testifies to these things say, surely I am coming quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ. ਆਮੀਨ. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ. This is the word of God. May God bless his word. Let us pray. ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ. Living God, we thank you for this day. ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ. And we thank you, Father, once again that you have separated us from the world, Father, and brought us into your place. ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਗਿਆ. ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ
ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। And Father, there are so many people, Father, at home who are waiting for somebody or something, Father, that may come their way. But Father, your people are here accumulated. ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਖਾਲੀ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। And those that's here, Father, we pray that no one goes away empty-handed. ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਅਸਮਾਨ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ। And we pray that the heavens will be open with your blessings. ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੜ ਜਾਣ। And we pray that people's hearts will be broken, Father, by your word. ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣ। And we pray that your word will change the lives of people. ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਲਈ। And Father, we thank you for your presence. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਾਰਡ ਗॉड, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਭ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਅੱਜ empty handed ਨਾ ਜਾਵੇ। And Father, we pray, Father, for your blessing on each one for that are here, Lord. And we pray that no one goes away empty-handed. ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਪੰਕਜ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣੇ। And Father, we pray that your servant, Father, who has come to give out your word, we pray that your words will be in his mouth. ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। And Father, we pray that your will be done in this meeting. ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, Not any man, but your will. ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। We pray that your will be done. ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੋ। Thank you, Lord. ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ I give you all the glory and honor to you, Lord, and honor to you, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ In the name of our Lord Jesus Christ, say. ਆਮੀਨ। Amen. हालेलुया। पहले उसकी बादशाहत उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है, वही तो राह है, सच है, वही
जीवन है और उसने रूह हो जो भेजी है साथ हर दम है और उसने रूह हो जो भेजी है साथ हर दम है वो सदा साथ चलेगा उसका वादा है चलेगा उसके वादे पे एतबार करो खुदा से प्यार करो प्यार करो प्यार करो खुदा से प्यार करो प्यार करो प्यार करो पहले उसकी बादशाहत उसकी राह चुनो पहले उसकी बादशाहत उसकी राह चुनो तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो वो जो कहता है करेगा उसका वादा है करेगा उसके वादे पे एतबार करो खुदा से प्यार करो प्यार करो प्यार करो खुदा से प्यार करो प्यार करो प्यार करो खुदा से मांगो मिलेगा उसका वादा है उसके वादे पे एतबार करो खुदा से प्यार करो प्यार करो प्यार करो खुदा से प्यार करो प्यार करो प्यार करो हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को जय मसीह की और शालोम। Greet you all in the name of Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि जिसने मौका दिया कि आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं I thank the Lord that He gave me an opportunity to come and serve you people. और पास्टर जी का धन्यवाद करता हूं और पूरी कलीसिया का धन्यवाद करता And I thank the pastor and all the congregation sitting here. हूं। हालेलुया। Hallelujah. सारी महिमा सारा जलाल प्रभु यीशु को मिले। We give all the glory honor to our Father. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम लोग कलाम में चलते हैं। We go to the word. जब हम उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय उसकी 26 आयत को पढ़ते हैं When we read Genesis chapter 1 verse 26, और वहां लिखा है परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। and God made man in His own image. और अब देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम हवा को बनाकर अदन के बाग में रख दिया And God made Adam and Eve and keep them in a garden of Eden. और दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उनसे आकर रिफाकत फेलोशिप संगति किया करता था। And every evening when it's a cool down, God come and have a word with them. गीत गा रहे थे Speak to ना them. कि वो कौन सा गीत था
ठंडी याद आती है ना, Yeah, when Hallelujah. we are singing a song, तो ठंडे समय में परमेश्वर जाकर उनसे क्या करता था, फेलोशिप करता था, in the cool time, God come and speak to them. आया और जाया करता था। Lord come and goes. लेकिन जब गुनाह हुआ, रिश्ता टूट गया, और खुदा के दिल में एक ही बात है कि वो इंसान से रिफाकत करना, फेलोशिप करना ना छोड़े। And then when the relation is been broken, God want to make that relation back to again. अब परमेश्वर सिनई पहाड़ पर आकर And God come to the इजराइलियों Mount से Sinai, बातें किया करता था, and God come to the Mount Sinai and start speaking to इजराइलियों से बातें किया करता to Israel. था। उसने लोगों से फेलोशिप करना नहीं छोड़ा। He never left his people. परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि वो लोगों के साथ फेलोशिप करे। God liked to talk to his people. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और हम देखते हैं जब इजरायली लोग वायदे की देश की तरफ बढ़ रहे थे, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, So when the people of God was walking towards the promised land, God speak to the Moses. परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरे लिए मिलाप वाले तंबू को बनाओ, क्योंकि मैं मिलाप वाले तंबू में आकर तुमसे फेलोशिप रिफाकत किया And करूंगा। God says to the Moses, go and make a temple, so I will come in that temple. परमेश्वर आता था और उनसे बात करता था, And God come and speak to his people. और जब उन्होंने वादे के देश को जीत लिया, उसमें बस गए, So when they went to the promised land and they start living in it, इजराइल देश बन गया, and then it became Israel, सुलेमान बादशाह बना। and then there's King Solomon, सुलेमान ने खुदा की हैकल को, मंदिर को बनाया। and then the Solomon, he made the temple of the God. अब परमेश्वर उस मंदिर में आकर लोगों से बातचीत क्या करता है। And God start coming in that temple and start talking to his लेकिन हम people. देखते हैं कि यीशु मसीह आया, And then Jesus come. हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, And he come and he died for us. और अपने चेलों को कह के गया, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार को भेजूंगा। And he told he come and he told his disciple, I'm coming और and I'm उसने going, I'll come back. रूहुल कुदस को, पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा है, And then he sent the Holy Spirit for us. और वो होली स्पिरिट आता है, And Holy Spirit come, जाता नहीं है, he never goes. वो हमारे बीच में रहता है। And he live within us. पहले खुदा आता था और जाता था, लेकिन अब वो आकर हमारे बीच में रहता है। Amen. So now before God comes and goes, now he sent the Holy Spirit who remains Hallelujah. with us all the time. क्योंकि उसे अच्छा लगता है हम लोगों के बीच में रहना। Because God likes to communicate with us. हालेलुया। Hallelujah. आइए एक आयत को पढ़ेंगे, दूसरा ग्रंथियों उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत क्या कहती So है। we're going to read 2 Corinthians. Corinthians chapter 4 verse 7 क्या कहती है। देखिए, कोई पढ़ दे जल्दी से पढ़ दे, इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ दीजिए। हाँ, क्या बोलता है, हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। And हाँ? it says that, हाँ, पढ़िए 26, नो चैप्टर 4 वर्स 7 7, चैप्टर 4 chapter 4. नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। हालेलुया। हाँ, पढ़िए वर्स 7। 7. But we have this treasure in the jars of clay. हाँ, क्या कहता to है, show मिट्टी that- के बर्तनों में उसने क्या रखा है, खजाना रखा है, So he keep his treasure in the clay. है ना। मिट्टी के बर्तनों में क्या रखा। He keep the treasure in the clay. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप अपना खजाना कहां रखते हैं। So I want to ask you people where you keep your treasure. बताइए, अपनी कीमती चीज, अपना सोना, चांदी, पैसा कहां रखते हैं। So where you keep your gold and all the expensive stuff you have. बताइए कहां रखते हैं। Where you keep them? बैंक में, किसमें, Safe. सेफ में। किसका बना है, So what it been made of? बोलिए। मेटल का, आयरन का बना है। Yeah. लेकिन यहां पे खुदा का कलाम बता रहा है कि खुदा ने मिट्टी के बर्तनों में अपना खजाना रखा है। But here the word of God says that he kept his treasure in the jar of clay. पूरी आयत पढ़िए, क्या लिखा, सुनिए ध्यान से। We're going to read the whole verse. हाँ, पूरी आयत पढ़िए, पूरी आयत। हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में है,
हाँ, ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से है। Amen. Amen. है ना? ये एक्सेलेंस पावर है। ये बात क्या कर रहा है? So what खजाने God की। is talking about the treasure. मैंने पूछा आप खजाना कहाँ रखते हैं? बोलते आप सोने सॉरी मेटल के केस में रखते हैं। So I asked you where you keep your treasure and you said you keep them in the लेकिन metal case. यहां पे हम देखते हैं खुदा ने अपना खजाना किस में रखा है? मिट्टी के बर्तनों So में। now here we can see the Lord keep his treasure in the jars of clay. दूसरे शब्दों में अगर मैं से पूछूं ये मिट्टी के बर्तन कौन है? बताइए So if I ask you what is this kind of jar of clay? कौन है? बोलिए। हम लोग हैं। और वो खजाना क्या है? वो पवित्र आत्मा है। And then we are the jars of clay and then the treasure is the Holy Spirit. हालेलुया। Hallelujah. अब एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं, खुदा ने इंसान को मिट्टी से क्यों बनाया? So I want to ask you another question. Why God made a man with the clay? वो बता सकता है खुदा ने Anybody इंसान को tell मिट्टी me? से क्यों बनाया? Why God created a man with the clay? खुदा अपना खजाना मिट्टी के बर्तन में रखता है और हम और लोग अपना खजाना कितने लोहे के मेटल के केस में रखते हैं। So God made his treasure and he put it into the jars of clay. खुदा But ने where we keep our खुदा ने treasure. इंसान को मिट्टी से क्यों बनाया? Why God made बताइए man with जल्दी the से। clay? एनीबॉडी? क्यों बनाया खुदा ने? Why God made man with the clay? एनी आइडिया? नहीं, वो नहीं, मिट्टी से क्यों बनाया? So his word can soak in it. चांदी से नहीं बना सकता था? लोहे से नहीं बना सकता था? क्या उसके सोने की कमी है उसको? कितनी खूबसूरत बात बताई। Amen, amen, amen. कई लोग कहते हैं कि मिट्टी से इसलिए बनाया क्योंकि मिट्टी को मोल्ड किया जा सकता है, Some people say that they made with the clay. We can make it anything. लेकिन with the डायमंड clay. को, आयरन को भी हम मोल्ड कर सकते हैं। But we can do it with the gold as well. परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से इसलिए बनाया क्योंकि मिट्टी की कोई भी वैल्यू, So God made man with the clay because the clay has no value. भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए। परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से इसलिए बनाया क्योंकि मिट्टी की कोई भी वैल्यू नहीं So है। God made man with the clay because the clay had no value. मैं मिट्टी का बनाऊं I'm made of clay और मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। and I have no value. मेरी तब तक वैल्यू है जब तक मेरे अंदर आत्मा है, And I have a value until I have a spirit. और जब आत्मा निकल गया, So when the spirit goes मैं away, यहाँ मरा हुआ पड़ा हूं, I will be died there. मेरे घर के लोग बोलेंगे बदबू आ रही, जाके जल्दी से दबाओ या जला दो इसको। And then my family gonna say, it's smelling. जब Take तक it off. आत्मा है तब तक वैल्यू है, जब आत्मा गया वैल्यू खत्म। Amen. So until we have a spirit, we have a value. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन इंसान मिट्टी पत्नी क्यों किस चीज का घमंड करता है? So why we are proud? समझ आ रही है आपको मेरी बात? परमेश्वर ने इंसान को इसलिए मिट्टी से बनाया क्योंकि मिट्टी की कोई भी वैल्यू So नहीं। that's why God made man with the जब clay. तक because we have no सांस value. है तब Until तक we have a वैल्यू breath. है, सांस गई तो दबा देंगे या जला देंगे। So until we have a breath, we have a value. When the breath goes away, we वचन have क्या no बताता है? value. खुदा ने मिट्टी के बर्तनों में अपना असीम धन रखा है जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं। And God kept his treasure in the jars of clay. हालेलुया। Hallelujah. वो मिट्टी के बर्तन कौन है? And who is the jars of clay? हम लोग हैं। हालेलुया। Amen. आपको पता है जब उन्होंने टैबरनेकल को बनाया, So when God made the tabernacle, yeah, जब उन्होंने मिलाप वाले तंबू को बनाया, when they made the tabernacle, तो खुदा ने मूसा को कहा मेरे लिए कुछ बर्तनों को तैयार करो, and God said, prepare me some jars. और उन बर्तनों को खास मसा करना है, तेल के द्वारा, स्पेशल ऑयल के द्वारा मसा कर कर मेरे घर में सिर्फ मेरी सेवा के लिए रख And दो। then they said, anoint the jars with the oil and keep them in the tabernacle. हालेलुया। Hallelujah. उन बर्तनों को तैयार किया गया And then he prepared it, और स्पेशल ऑयल से अनॉइंट किया गया, मसा किया गया, and they anointed with the oil, और special सिर्फ oil, खुदा के घर में रखकर सिर्फ खुदा की सेवा के लिए छोड़ दिया and गया। kept them into the tabernacle to serve the Lord. अब उस बर्तनों को कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर And सकता, nobody can ever use them. है ना? वो सिर्फ किसके लिए? And that's only for. बोलिए। लेकिन हम जानते हैं जब जोशुआ
यहोशू अपने इजरायली लोगों के साथ वायदे के देश की तरफ बढ़ रहा था, So when we know that when the Joshua going to about to the promised land, कंट्रीज को जीतता जा रहा था, he was winning lots of cities. यहरियों को, इतने बड़े शहर को हराने के बाद अब ए देश से उसका युद्ध हो रहा है। And after that he defeated the Jericho. He's going further. जोशुआ 7 में आप देख सकते हैं। You can read Joshua और 7. जब वो युद्ध हो रहा है तो थोड़े से लोगों को जाकर लड़ता है और वो हार जाते हैं और अपने कपड़े फाड़कर खुदा के सामने जाते हैं, बोलते हैं खुदावंद हम क्यों हार गए। So when they went to defeat the A, they've been defeated, and they come back to the Lord and ask him why. खुदा कहता है तुम में से एक आदमी ने मेरे अभिषेक किए हुए मेरे डिवोटेड वेसल को क्या किया है, अपने लिए चुरा लिया है। And then he said that one of your man has cheated on me. है ना, जोशुआ 7 में देख सकते हो। उस व्यक्ति का नाम क्या था? अकान। Achan. अकान ने खुदा के मसा किए हुए, खुदा को अर्पित किए, डिवोटेड अर्पित किए हुए बर्तनों को क्या किया, अपने लिए चुरा लिया। So he chosen the good vessels for himself. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए पूरा इजराइल हार गया। And then because of that cheating, और all जब these- उन्हें पता लगा, परमेश्वर कहता अकान को, उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया। and then God commanded that destroy all of the Achan family. किसके कारण? Why? क्योंकि उसने परमेश्वर के मसा किए हुए, जो परमेश्वर को अर्पित डिवोट किया गया बर्तन था, उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। Because he used the gift of the Lord for himself. खुदा का अर्पित किया बर्तन, जो बर्तन सिर्फ खुदा के लिए है, वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। And he took that vessel for himself. और आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वो बर्तन कौन है? And I just want to ask you, who is that chosen vessel? कौन है वो बर्तन? Who is that chosen vessel? कौन है वो बर्तन? Who is that chosen आपको vessel? पता है कलीसिया, जिसे चर्च कहते हैं, And you know that the church, उसकी डेफिनेशन क्या है? you know the definition of church. चर्च जो है, एक कलीसिया जो वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड अक्लीसिया से आया है, And then it come out from the Greek word, जिसका मतलब है चुने हुए लोग। and it means the chosen people. वो कहना क्या चाहता है? What he want to say? चर्च का मतलब क्या है? What's the meaning of वो church? लोग जिनको खुदा ने दुनिया से चुना है, And the people, those who've been chosen from the अपने world, बेटे के पाक खून से, जो पूरी कायनात का सबसे प्रेशियस खून है, सबसे कीमती खून है, उससे धोया है and then that been be cleansed by the blood of और Jesus. अपने पवित्र आत्मा से मसा कर कर अपने लिए अलग कर लिया And है। that there's been be full of the Holy Spirit, and वो for them, किसी और काम के लिए नहीं है, they are अब not for no one. वो सिर्फ खुदा के काम के लिए और उसकी सेवा के लिए। They only belong to the Lord and to serve the Hallelujah. Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कौन है कलीसिया? And who is कौन the है chosen चर्च? people? वो लोग जिनको खुदा ने दुनिया से अलग किया है And the church is the people और of अपने God, बेटे who is के chosen. पाक और इस पूरी कायनात में सबसे कीमती खून से धोया और पवित्र आत्मा से मसा किया और अपने लिए अलग किया है। And these people are being chosen and cleansed by the blood of Jesus and been separated from the world. वो for अब the God. किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, They can't be used for anybody ना else. उनको कोई रिश्तेदार या ना यार दोस्त ना नेबर कोई इस्तेमाल कर सकता है। Nobody can else use them. Doesn't matter is your friend or a family or whosoever. मैं it is. खुदा का अर्पित किया हुआ बर्तन हूँ, And I am the chosen मैं vessel. सिर्फ खुदा के लिए हूँ। I am only for the Lord. मुझे मेरा रिश्तेदार, मेरा यार दोस्त, मेरा पड़ोसी इस्तेमाल नहीं कर सकता। Nobody else can use me. मैं अपनी मर्जी से अपने आप को भी इस्तेमाल नहीं कर I सकता हूँ। cannot even use it for myself. मुझे इस्तेमाल करने वाला वो है। Only the God can use me. हालेलुया। Hallelujah. ये है कलीसिया। This is what the is कितने church called. लोगों को समझ आ रहा है? How many people understand? हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. हम वो बर्तन है जिसको परमेश्वर ने दुनिया से अलग किया, And that vessel has been separated from the अपने world. बेटे के पवित्र खून और उस खून से जो इस पूरी कायनात में सबसे कीमती है, उससे धोया है। And is being washed by the precious blood of Jesus Hallelujah. for himself. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये वो खून है जो पूरी कायनात में, This is the blood of Jesus for the फॉर एग्जाम्पल, ये वो खून है जो पूरी कायनात में सबसे कीमती है। and this is the precious blood of the Jesus. इस खून से किसी चीज का कंपैरिजन नहीं हो सकता। You cannot compare with anything. समझ आ रहा है?
इस खून से क्या किया उसने? And what he did with this blood. इस खून से क्या किया? इस खून को देकर बाइबल बताती है उसने हमें दाम देकर मोल लिया। And then he purchased us. इस पूरी कायनात का सबसे कीमती है ये, सबसे This is the प्रेशियस है, precious. इसकी This is the कोई precious. कीमत नहीं है। There is no value of this blood. उसने इसको देकर And he हमें gave क्या this किया blood. है? He took you. Amen. हमें Amen. Amen. ले लिया। इस पूरी कायनात में सबसे कीमती कौन है? प्रेशियस कौन है? And then what is the importance of this whole world? इसको देने के बाद After he gave his blood. अब प्रेशियस कौन है? And who is the precious now? हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? कितने लोगों को समझ आ रहा है? Hallelujah. कौन है प्रेशियस? Who is the precious one सबसे now? प्रेशियस तो उसने दे दिया So, and then he और gave his हमें precious. ले लिया। And he took us. इसका मतलब हम लोग कौन है? Precious. सबसे प्रेशियस। Amen. Amen. हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? How many people हम लोग क्या understand है? who we are? आपको पता है खुदा से बड़ा कोई है? You know that nobody bigger than Lord. खुदा से बड़ा कोई है? लेकिन अगर खुदा के दिल में देखें हमसे बड़ा कोई नहीं। Amen. So when we look into the heart of the Hallelujah. Lord, we are in his heart. आसमान का परमेश्वर, Oh, the Lords of heaven. उसका बेटा रूल कुदस सभी फरिश्ते किसके लिए काम करते हैं? And his son and the Holy Spirit. उनके work for पास whom? कोई और प्रोजेक्ट नहीं है, They have no other project. और कहीं नहीं ध्यान उनका। They have nowhere to look वो at. 24 घंटे हमारे लिए काम For करते the हैं, 24/7 they keep क्योंकि looking इस onto us. पूरी कायनात में Because in this whole world, हमसे प्रेशियस कोई नहीं। there is no one precious than us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप अपने खजाने को किसी की सिक्योरिटी में देंगे तो आपका दिल क्या करेगा? आप 10 लोगों को सिक्योरिटी में दे देते हैं अपना खजाना, लेकिन आपके दिल में क्या होगा? नहीं, ये अच्छे से सिक्योरिटी नहीं कर सकते। Even though you give your treasure to someone else to keep जो it safe, सिक्योरिटी but आप you कर still सकते feel हैं वो दूसरा unsafe. नहीं कर सकता, Because the secure you will do it, nobody else can. है ना? Is it true? हम लोग प्रेशियस हैं, तभी खुदा हमारी सिक्योरिटी करता है। Amen. वो कहता है, Amen. सुन इजराइल का रक्षक ना तो सोता है ना ऊँगता है, वो दाहिनी ओर तेरी ढाल बनकर खड़ा है। Amen. That's the word of God says. उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं है। He doesn't trust on anybody. वो कहता है मैं खुद इनकी सिक्योरिटी करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए सबसे प्रेशियस है। Because he is the one who's securing us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहती देख मैंने तेरा चित्र अपने हाथों की हथेली पे बनाया है और तेरी शहरपनाह हमेशा मेरे सामने रहती है। Because Lord said that you are in my hand and I watch you all the time. हालेलुया। Hallelujah. खुदा किसको देखता रहता है? Whom God watching all the time. आसमान पे बैठा, उसकी निगाह किस पे? And then all the time where he is watching us. हम लोग कौन है? Amen. हम सबसे प्रेशियस है। We are the precious one. हालेलुया। Hallelujah. लोगों को समझ आ रही बात? How many people हम लोग क्या हैं? understand? Precious. दुनिया के लोग हमें क्या समझते हैं? What the world people think about रिश्तेदार us. हमें क्या समझते हैं? What the relatives are think about पड़ोसी us. क्या समझते What हैं? the neighbors think about कई us. बार हम भी अपने आप को ऐसे ही And समझते what हैं, did we think about लेकिन us? जब खुदा के आंखों से देखोगे But when we look from the Lord's तो eyes, हम इस पूरी कायनात के सबसे so प्रेशियस। we are the precious treasure of this world. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अन्य जाति से पूछो कहाँ सेटल होना चाहते, बोलते हैं अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा सेटल होना चाहते हैं। If you ask for the pagan, you're gonna ask them where you will want to be settled. मसीह लोगों से पूछो कहाँ, बोलेंगे स्वर्ग में। And if you want to ask to the Christian where you're gonna live, they're लेकिन gonna say in खुदा heaven. से अगर पूछो, खुदावंद आप कहाँ सेटल होना चाहते हो, खुदा कहता है ये मेरा घर है, मैं इसमें सेटल होना चाहता हूँ। So when you ask to the Lord where you want to be settled, He said, I want to live in your heart. हम लोग आप नहीं हैं, हम इस पूरी कायनात में सबसे प्रेशियस हैं, क्योंकि खुदा की निगाह में, खुदा की दिल में सिर्फ हम ही हम हैं और कोई नहीं है। We are a very precious ones because we Hallelujah. live in the heart of Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. खुदा की आंखें हमारे ऊपर, खुदा के कान हमारे ऊपर, खुदा के दिल में हम हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है हमारी आंखों में क्या है और हमारे दिल में क्या है। So what we think, we are in the God's eyes and ears and then where the God's in our heart. समझ आ रही है? हम वो बर्तन हैं, है ना? हम वो लोग हैं जिनको खुदा ने दुनिया से चुना, We are the people who's been chosen by the world. अपने बेटे के खून से, सबसे प्रीशियस खून से धोया And God washed us with the precious blood of Jesus. और अपने प्रभु से
मसा किया And then he blesses us with his Holy Spirit. और अपने लिए अलग कर And लिया। then he separates us from the अब world. हम और किसी काम के लिए नहीं हैं, And we are not for no one else. हम सिर्फ उसके लिए हैं। We belong to the Lord. कितने लोगों को समझ आ रही बात? How many people can Hallelujah. understand? Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आपको पता है नबूकदनेस्सर राजा जो बेबीलोन का राजा था, You know the Nebuchadnezzar, the king? उसके एक सवाल पूछना चाहता हूं उससे पहले, I want to ask you one question before. कितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया यहाँ? How many people receive the Holy Spirit? जल्दी से हाथ दिखाइए। चलो दूसरी तरीके से, कितने लोगों ने रूहुल कुदस यानी होली स्पिरिट पवित्र आत्मा नहीं पाया, वो हाथ दिखाएं। अच्छा, कितने लोग गैर जुबान नहीं बोलते हैं, वो हाथ दिखाएं। और अबा शखंदर अबीना, हाथ दिखाइए, पूरा डरे ना, दिखाइए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, पढ़िए पहला कुरिन्थियों 12:3, ये So we're बहुत gonna read जरूरी 1 है Corinthians आपको समझना। 12:13. पहला कुरिन्थियों 12:3 क्या कहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। पहला कुरिन्थियों 12:3 जल्दी से पढ़ दीजिए। हाँ हाँ Amen. हाँ, Amen. Amen. Therefore, I tell you that no one who speaking in the Spirit of the God says Jesus is Jesus, because no one can say Jesus Lord except by Holy Spirit. Amen. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों का ये विश्वास है How many people believe कि यीशु भी प्रभु है? Yeshua, the Lord is the, yeah. यीशु भी प्रभु है। जीसस इज आल्सो गॉड। यीशु भी प्रभु है, बाकी भी प्रभु हैं, यीशु भी उनमें से एक है। कोई है यहाँ? और कितने लोगों का विश्वास है कि यीशु ही प्रभु है? Amen. Amen. और मैं बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम कहता है, नो वन कैन से जीसस इज लॉर्ड बट बाय द होली स्पिरिट। Amen. जितने लोगों का ये ईमान है कि यीशु ही खुदा है, उनमें रूहुल कुदस पवित्र आत्मा है। Only the person who all had a Holy Spirit can confess that the Jesus is the God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब दूसरी बात, आपके पास आपका मोबाइल है? आपके पास Do you have your mobile phone? जल्दी से निकालिए, Bring it out. जल्दी निकालिए, अपना मोबाइल निकाल के रखिए। सभी मैं आपसे जल्दी से क्वेश्चन पूछूंगा। Take your phone आपका out. फोन कहाँ है? निकालिए फटाफट, ठीक है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी लिखाइए, दिखाइए फोन, टाइम शॉर्ट है मेरे पास। हाँ जी, ठीक है। आप जल्दी से आगे आ जाइए बहन, फटाफट आइए, वेट मत करिए, जल्दी आइए प्लीज। आपका फोन, आ जाओ, जल्दी आ जाओ आगे, फटाफट आ जाओ, जल्दी आओ आगे प्लीज, आपको बुला रहा हूं, जल्दी से आइए। उनको आने दो, आप जाइए प्लीज, आइए। सुनिए, जल्दी आओ प्लीज, इधर को आ जाइए। देखो, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप है, Do you have mobile phone Facebook and है, WhatsApp and Facebook? है, ईमेल आता है आपको करना, Do you have email? टिकटॉक आता है। You know how to do the TikTok? सुनो 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 सुनो, आपके पास फोन है, Do you have phone? व्हाट्सएप है, WhatsApp? आता है, Do you know? मैं इतना यूज नहीं करती थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा फेसबुक आता है, नहीं मैं नहीं यूज की जीमेल। नहीं मैं नहीं करती अब सुनिए, बड़े ध्यान सुनिएगा, Listen to me now. इन दोनों के पास फोन है, They both have phones. इनके फोन में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जीमेल है, टिकटॉक है, इन्हें सब आता है। She have all the social medias in her phone. इनके पास फोन है, इनके फोन में सब कुछ है, She has phone and she इन्हें got नहीं everything आता। in the phone, but she doesn't know. है ना? सुनिए सुनिए सुनिए, इन्हें नहीं आता, इसका मतलब don't ये know तो how नहीं to कि use इनके it. फोन में नहीं है। And if she has phone, doesn't mean it doesn't exist in the phone. फेसबुक आता है? नहीं आता, पर इनके फोन में तो है। But she does not know how to use it, but the phone has Facebook. जिन लोगों का ये विश्वास है कि यीशु ही प्रभु है, उनमें पवित्र आत्मा है। And those people who believe that the Jesus is the God, वो they have the वो Holy कहते हैं मैं Spirit. गैर जुबान नहीं बोलनी आती, And some people say, I don't know how to speak tongues. प्रोफेसी नहीं होती, I can't prophesy. हीलिंग नहीं होती, I can't heal. डिलीवरेंस नहीं कर I सकते। can't deliver.
तो इसका मतलब मैं बताना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा आता है वरदानों को छोड़कर नहीं आता, साथ में आता है। And then the one Holy Spirit comes. जब इन्होंने फोन खरीदा सभी ऐप साथ में थे। And then when she purchased the phone. जब इन्होंने all फोन the- खरीदा सभी ऐप इनके साथ थे। So when she purchased the phone, all इसका मतलब ये नहीं कि इनके फोन में ये ऐप्स नहीं है। it doesn't mean she doesn't have no apps in her phone. आपको व्हाट्सएप आता है? थोड़ा थोड़ा। किससे सीखा? बच्चों से सुनिए, अब जाइए अपनी जगह पे। अब सुनिए मैं क्या ना क्या चाहता हूं। Listen to me now. मैं आप लोगों से पूछता हूं, I want to ask you. कितने लोग गैर जुबान नहीं बोलते? हाथ दिखाएं। इसका मतलब तुसी पवित्र आत्मा पाया ही नहीं। If does it mean you don't have Holy Spirit? समझ आ रही है? Can you वचन क्या understand कहते? me? कितने लोग का ईमान है कि यीशु ही प्रभु है? How many people believe that Jesus is a God? बिना पवित्र आत्मा के आप नहीं कह सकते। Without Holy Spirit, you cannot say that. पवित्र आत्मा भी है, And Holy Spirit उसके is- 9 के 9 वरदान भी and हैं, it has its fruit as well. है ना? किसी को गैर जुबान है, किसी को प्रोफेसी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा है ही नहीं है। So some people have the gift of prophecy, some people have gift of the healing. इन्होंने अपने It doesn't बच्चों mean के they doesn't साथ have the बच्चों Holy के साथ Spirit. फेलोशिप कर कर व्हाट्सएप थोड़ा थोड़ा चलाना आ गया। She has learned from her children how और to जब operate आप लोग WhatsApp. ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप करोगे जो वरदानों में चलते हैं, So when healing you, में, when you fellowship the people, those who have the gift हीलिंग of the में, Lord, मिरेकल में, प्रोफेसी में चलते हैं, ऑटोमेटिकली आपको भी आने लग जाएंगे। So when- क्योंकि आपके जो मोबाइल में ऐप्स हैं और इसी तरीके से पवित्र आत्मा के पास भी 9 के 9 ऐप्स जो हैं वो आपके अंदर हैं। Amen. Operate करना है। The Holy Spirit already have समझ आ रहा है all आपको the बात? gifts, all of them you have it, अब- but you don't know how to use अब it. कोई पूछे कि कितने लोग गैर जुबान बोलना नहीं आता है, जब आप हाथ खड़ा करें और फिर वो बोलेंगे क्या आपने आत्मा पाया, आप बोलना हाँ मेरे अंदर Amen, आत्मा है। वो amen, कहेंगे amen. आपको तो गैर जुबान नहीं आती, बोलना पहला कुरिन्थियों 12:3 कहती है कि मैं मानता हूं कि यीशु ही प्रभु है और ये बिना पवित्र आत्मा के नहीं हो हो सकता। Amen. Only the Spirit Hallelujah. of the Lord can only confess. मैटर नहीं है that we have a वरदान spirit. इस्तेमाल करना आता है ना? हीलिंग नहीं होती है, प्रोफेसी नहीं होती है, गैर जुबान नहीं बोलना आता है, कोई बात नहीं। ऐसे लोगों के साथ संगति करोगे अपने आप आ जाएगा। So if you don't know how to speak in tongues, you don't have healing. you WhatsApp don't have चलाना prophecy, थोड़ा-थोड़ा आ गया। You will know when you fellowship with them. थोड़ा थोड़ा जैसे अपनी बेटी के साथ और सीखेंगे तो फेसबुक भी आ जाएगा, So as कल you को go मेल along भी with करना it, आ you will जाएगा, know. फिर टिकटॉक पे फिर डांस डूंस करके वो भी बना देंगी, है ना? And then you will learn how to be playing. समझ आ रहा है आप लोगों Can you understand me? हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो नबूकदनेस्सर जो राजा था वो खुदा के मंदिर से, यरूशलेम के मंदिर से बर्तनों को लेकर, जो खुदा के चुने हुए बर्तन थे उनको लेकर अपनी कंट्री बेबीलोन में अपने देवता के मंदिर में रख देता। So the Nebuchadnezzar bring all the vessel of the Lord, bring it to him and put it in his own temple. वो मर जाता है, And then he died. उसका बेटा बिलशस्सर राजा बनता है And then his son Belishar became और a एक king. दिन वो अपने लोगों के साथ बैठकर शराब पीता है And one day he decided to drink. और उसको याद आता है And then he कि remembered. मेरा बाप यरूशलेम के मंदिर से खुदा के बर्तनों को लाया था, क्यों ना आज उसमें शराब पीऊं। And he realized that my father bought some vessels from the Babylon and he... is it from Sharab, Babylon? sharab. Yeah, from Israel, and then he gonna drink. और वो शराब जब पीता है And when he start drinking, तो उन्हीं के वे में दीवार पे लिखी हुई प्रोफेसी आती थी and then he will see a prophecy on the wall. और दीवार पे लिखा हुआ आता है। And then he saw the prophecy. सभी नबियों को बुलाता है, He called all the... इंटेलिजेंट लोगों को बुलाता है, Yeah. पूछता है इसको ये क्या मतलब है इसका। And he asked them to reveal the किसी message को to पता them. नहीं लगता। Nobody else डैनियल को know. बुलाया जाता है, And he called the Daniel. डैनियल कहता है इसका मतलब है तूने खुदा के बर्तन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, And the Daniel come and he explained the message to इसलिए them that तेरा you जो use the vessel in the राजपाट है, wrong- तेरी किंगडम है, तुझसे ले ली जाएगी And he said that your kingdom will be taken from you और तू आज मर जाएगा। and you will die today. क्यों? Why? क्योंकि उसने खुदा के बर्तन को गलत इस्तेमाल And किया। because he used the vessel for the wrong reason. सोच के देखिए Think about it. कि वो बर्तन, Think about the vessel. वो बर्तन, The vessel. वो दुनियावी बर्तन, एक मिट्टी का या चांदी का, सोने का It's just बर्तन the है, worldly vessel. पुराने नियम का बर्तन है वो, And it's the Old Testament vessel. जो सिर्फ साधारण It's just तेल an से ordinary- अभिषेक किया गया है। Just an
ordinary, which been anointed by the oil. लेकिन हम तो वो बर्तन हैं But we are the vessel. जिनको खुदा ने दुनिया से अलग किया, We are the vessel being chosen by the अपने world. बेटे के पाक और सबसे कीमती खून से धोया And we have been washed by the blood of और Jesus. पवित्र आत्मा से मसा किया And we have been anointed by और the Holy अपने Spirit. लिए अलग किया And we है। have been separated और from the अगर world. हम इसे मिसयूज करेंगे If you misuse our तो body, क्या होगा? what's gonna happen? कितने लोगों को समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आ रही है? ये तो साधारण सा बर्तन है This is just जो an ordinary दुनियावी तेल से मसा करने के ऊपर भी खुदा को इतना गुस्सा आया है, तो हम लोग तो क्या हैं? So what's gonna happen to us? हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों को समझ आ रही है? And people, हम कौन से बर्तन हैं? what kind of vessel हम we खुदा are? के घर के बर्तन हैं। We are the vessel of the हमें God. कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। Nobody can else use हम अपनी us. मर्जी से भी अपने आप को इस्तेमाल We cannot use for ourselves as well. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आपको पता है अहद का जो संदूक था, You know the आर्क ऑफ द Ark of the Covenant. उसको फलस्ती लोग उठाकर अपने देश में ले गए। And then all the Palestinians took the covenant. उन्होंने एक शहर में रखा, He put it in one place. वहां के सब लोगों को फोड़े निकल आए, And then all the people been cursed. गिल्टियां निकल आई, They all been cursed. और उसके बाद फिर वो दूसरे शहर में रखते हैं, वहां भी ऐसे ही होता And then they took it to the another place and they been तीसरे में cursed as रखते हैं, well. वहां भी ऐसे ही And they होता took है। it to the third place, they've been cursed as well. डेगोन देवता के मंदिर में उसको रख दिया जाता है। And they keep it into the Gedon's, is it? डेगोन Dagon's temple. डेगोन देवता के मंदिर में जब उसको रख दिया जाता है, उसकी मूर्ति के सामने रखा जाता है, किसको? अहद के संदूक। And they keep that covenant, Ark of कितने लोगों को Covenant पता in है? front of that आर्क ऑफ द कॉवेनेंट। Ark of the Covenant. तो जब उसको रखा जाता है, Placed there, अगले दिन जब आते हैं when they come to the तो temple. डेगोन देवता की मूर्ति ऐसे गिरी होती है। And then when they come to the temple to worship the Lord, the Gedon was कितने लोगों को पता है? broken. है ना? उसके आगे गिरी होती है, And then it been broken. ब्रोकन नहीं, गिरी होती है, Giri, okay, it been Bore fell, down. fell off. है ना? और उसके बाद वो फिर उसे खड़ा करते हैं, And then- अगले दिन आते हैं, And then they stood it, they put it back and then come back अब again. डेगोन फिर खुदा के अहद के संदूक, Again, that idol was lying down. उसकी हथेलियां कटी होती हैं, And then his hands been chopped, उसकी गर्दन भी कटी होती his है। neck been chopped as well. समझ आ रही है? Can you understand? कितने लोगों ने पढ़ा है, ये सुना है? अब मैं आप लोगों से यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। I'm going to ask you one question. अहद का जो संदूक है, The Ark of a Covenant. उसकी खासियत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? What's the importance of the Ark of Covenant? बता सकता है कोई? हाँ बोलिए जल्दी से। हारून की छड़ी. सही से बताइए। उस अहद के संदूक की एक खासियत है, So there is one very important thing of that Ark of उसके Covenant. ऊपर खुदा का शाइना ग्लोरी जो है, खुदा का जो जलाल है, वो आया और जाया करता था। Because the God glory come upon that Ark of Covenant, comes and goes. कितने लोग एग्री मेरे साथ? उसकी खासियत क्या है? What's the खुदा का जलाल उसके ऊपर आया और जाया करता था। So the God presence will comes and goes on that Ark of Covenant. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज वो अहद का संदूक कौन है? And you know what is the Ark of Covenant? बताइए, अहद का संदूक कौन है? वो अहद का संदूक हम हैं। So we अब are the हम Ark of पर Covenant. खुदा का जलाल आता है और रहता है। And then now the Ark of Covenant, we are the Ark of Covenant and God's presence come upon us and live. हालेलुया। Hallelujah. अभी तो जब गैर मसीह लोग आते, So when the दुष्ट आत्मा से ग्रस्त आते, when the demon possessed come, कभी तो उनके देवी देवता बोलते हैं, सानू छाड़ दो, सानू आग लगती पई है, ओहो, पैरों में लट जाते हैं और उन पुल्ठे पंखे चलने लग जाते हैं। and then the demon possessed will run from you because क्यों? they can see the presence क्या of the हम Lord में in कोई you. खूबी और लियाकत है? Do we have any value? बताइए, उस समय हम क्या हैं उनके सामने? हम अहद का Amen. संदूक है। So because we are in front of them like an Ark of Covenant, they couldn't डेगोन stand up. परमेश्वर के अहद के संदूक के आगे झुक गया। And then that idol will fall on
हम लोग कौन है? अहद का So who संदूक है। we are? We are अभी the वो Ark of हमारे Covenant. आगे गिर जाते, लिट जाते हैं। And then they died, they fell in front of us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अहद के संदूक की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि खुदा का जलाल आता और जाता है, लेकिन हम लोग वो अहद का संदूक हैं जिसमें खुदा का जलाल आता है और रहता है। And we are the Ark of Covenant where the God presence come and live. और आपको पता है खुदा के जलाल का सही जगह क्या है? And you know the right place of God's covenant. क्या थी अहद के संदूक, सॉरी, मिलाप वाले तंबू में, टैबरनेकल में राइट प्लेस क्या थी अहद के संदूक की? कोई बता सकता है? Anybody knows the right दुनिया place नहीं of- है उसकी जगह। कहां है उसकी जगह? मिलाप वाला तंबू में 3 सेक्शन है। There's a 3 places in tabernacle. पहला है आंगन, पैलेस, Yeah, palace. और दूसरा है होली यानी पवित्र स्थान, ऐसी है Second is ना? the holy. और तीसरा क्या है? बोलो, तीसरा क्या है? अति पवित्र स्थान, Most high. जिसे होलीज ऑफ होलीज कहते हैं। Most holy. आर्क ऑफ द कॉवेनेंट की सही जगह क्या है? Most अहद और के संदूक का राइट प्लेस क्या है? होलीज ऑफ होलीज। Amen. Ark of Covenant, where is the most holiest? वो आर्क ऑफ द कॉवेनेंट कौन है? And who is the most Ark of the बोलो। Covenant? Hallelujah. कौन है वो? और हमारी सही जगह क्या है? होलीज ऑफ होलीज। Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों को समझ आ रही बात? How many people can हालेलुया। understand? हम वो बर्तन है जिसको खुदा ने अपने बेटे के पवित्र खून से धोया है और अपने रूल कुदस से मसा किया है और अपने लिए अलग किया है। And God chose us and then cleansed us with the precious blood of Jesus Hallelujah. and separate us from the world. हालेलुया, Hallelujah. कितने लोगों को समझ आ रही है? हम अहद का संदूक है जिसमें खुदा का जलाल रहता है। We are the Ark of Covenant where the God presence live. आइए एक आयत को पढ़ें। Gonna दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय, Second जल्दी से। Timotheus. 2 तिमोथी 2 की 20 और 21, जल्दी से पढ़िए। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय उसकी 20 और 21। हाँ, पढ़ दीजिए कोई भी लैंग्वेज में। हाँ पढ़िए। हाँ, स्लो। हाँ हाँ, पढ़ो आप पढ़ो। हाँ, क्या बोलता है? कहता है बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के परंतु काठ और मिट्टी के बर्तन भी हैं। In the large house, there are articles not only of gold and silver, but also of the wood and clay. कुछ क्या आदर के हैं Some of them are noble और purpose. कुछ अनादर के हैं। Some of them are ignoble. कुछ डाइनिंग टेबल पे इस्तेमाल होते हैं Some of them been used on the dining और table. कुछ टॉयलेट में इस्तेमाल होते Some of हैं। them been used in the क्या toilet. टॉयलेट वाले बर्तनों को आप डाइनिंग टेबल पे इस्तेमाल कर सकते हैं? Could you ever use the vessel which you use in the toilet on the dining table? ये बर्तनों की बात कर रहा है पौलुस। ये बर्तन कौन है? And what kind of vessel Paulus was talking about? कौन है बर्तन? बताइए, Who is the vessel? बोलो। हम लोग कहाँ हैं? है ना? हम लोग कहाँ हैं भाई? So where we are? क्या हम लोग डाइनिंग टेबल पे हैं या टॉयलेट में? Where we are? Are we on the dining table or in the toilet? पढ़िए दोबारा से, जल्दी से पढ़िए, Gonna read फटाफट it पढ़िए। again. इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा है। Now, in the large 20 साल। house, हाँ, in the large house, there are not only a vessel of gold and silver, but also the wood and clay. हाँ। Some are for honor. कुछ and आदर some के are for हैं और dishonor. कुछ निरादर। अनादर के हैं। हालेलुया। Hallelujah. मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहता हूं। I want to give you one example. हम लोग इंडिया पाकिस्तान से, We are from India and Pakistan, एक ही कल्चर है, same culture. है ना? एक ही सब कुछ है इंडिया पाकिस्तान में। Yeah, we are saying हमारे जो पंजाब के अंदर जो बस स्टैंड होते हैं, in Punjab, Bus- where we have bus a coach station. coach station, yeah. उसके ऊपर आप देखना वाटर कूलर लगा होता है। And there is a water cooler. कितने there. लोगों ने देखा है? हाथ दिखाइए। क्या वाटर कूलर देखा आपने? पंजाब में, सॉरी इंडिया में, पाकिस्तान में ऐसी है Have ना? you seen on a coach station there is a water cooler? हाँ जी, देखा आपने? नहीं देखा होगा आपने। उसके साथ एक गिलास लगा होता है। And there is one glass there, क्या लगा होता है? देखा किसके साथ? chain उनको पता है किसके साथ बंधा होता है। के साथ. बोलो, Chain के साथ. चेन के साथ बंधा होता है गिलास। उस गिलास की शक्ल सूरत कैसी होती बताइए? है जी? अरे बताइए कैसी होती है?
What's the हाँ जी। condition of that glass? है ना, वहां जाके सेल्फी लेकर फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने का दिल करता है ऐसा। Do you think about it? You're going to take a picture and send it on कैसी शक्ल Facebook? होती है उसकी, Have you seen this? डिस्क्राइब करें ना, काले रंग का होता है, Yeah. It's चिपका very होता है। dirty. Yeah. है ना, क्रस्ट होता है, चिब्बा होता है, काले रंग का होता है, देखने को दिल नहीं करता, चेन से बंधा होता है। कोई भी आता है लात मारता है, ऐसे इस्तेमाल करता है। आपको पता है ये जो गिलास जो है, ये बर्तन कौन है? And you know that who is that glass? ये मसीह लोग हैं। किससे बंधे हुए हैं? Glass. Chain say. रिश्तेदारियों से, Yeah. शरीका। So we किससे all, बंधे? we all are people who's bind in the relationship. with the रिश्तेदार, people. कभी रिश्तेदार आते हैं, इस्तेमाल करते हैं। Some people, the family member come, they रिलेटिव, use us. Yeah, रिश्तेदार इस्तेमाल करते हैं, relative come and पड़ोसी use us, इस्तेमाल करते Neighbor हैं, use यार us. दोस्त इस्तेमाल करते हैं, Friends use इस्तेमाल करके इतना ही छाड़ देंगे। and they use us and leave it there. ऐसे ही होता है ना। This is what happened. समझ आ रही है? हमारी मसीह लोगों की ये हालत है। And this is what our condition is like हमने us. अपने आप को ऐसा बर्तन बनाया। This is what we make us like that. अब पढ़िए दोबारा से क्या लिखा है। We're going to read it again. 20 और 21 दोनों पढ़ेंगे। पढ़िए, बोलिए। Now, in the large house, बोलता है कि बड़े घरों में there are not only a vessel of gold and silver, सोने चांदी ही के नहीं, but also the wood and clay, और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। सुनिए क्या कहता है, पढ़िए। some of our honor and some for कुछ dishonor. इज्जत के बर्तन और Dishonor. ये गिलास किसका बर्तन है? So what the vessel is? आप किसका बर्तन है? Honor. कोई भी मांझे, कोई भी इस्तेमाल करे। Anybody can wash it, use it. पास्टर जी कहते हैं भैया संडे को चर्च आना है, नहीं पास्टर जी रिश्तेदारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਖਾਸ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। And then sometime pastor can come to the church and say, we have some family function, we're going to go there. जाओ, Somebody जब वो called us. मांझेंगे, अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, तब पता लगेगा। And then go, and then when they use you, then you will know समझ आ रही है आप लोगों को? कितने लोगों को समझ आ रही है? हम कौन सा बर्तन बने हुए हैं? what kind of vessel we are. है ना? क्या कहते हैं? पढ़िए दोबारा, पढ़िए, समझिए शायद को। Okay. हाँ, So, पढ़िए। So now in the large house, there are not only a vessel of gold, of silver, but also of the wooden, of clay. Some are for honor and some for dishonor. कुछ इज्जत के, कुछ बेइज्जती के। आगे 21 आयत क्या कहती, पढ़े। हाँ, If 21। anyone therefore purge himself for these, हाँ, he will be जो a अपने vessel of- आप को इनसे अलग करेगा, हाँ, he will be a vessel vessel of, of honor, वो आदर का बर्तन ठहरेगा। sanctify and suitable जो for the दुनियादारी master's से use. अपने आप को अलग Amen. करेगा, Amen. वो आदर का बर्तन बनेगा और स्वामी के काम आएगा। So whosoever will be sacrificed for himself. पहला कुरिन्थियों 7:21 में पौलुस कहता है कि दुनिया के साथ डील करने वाले दुनिया के ही ना हो लें। And then in the word says, in the Paul First says, Corinthians yeah, chapter 7 verse 31 says, पॉल कहता है दुनिया के साथ रिश्तेदारी निभाने वाले दुनिया के जैसे ना हो लें। and then those who've been used by the world, they will be like them. समझ आ रही है? वो कहना क्या चाहता है पंजाबी में? कहता जिदे नाल लाई गली उदे नाल ही तुर चली। वो कहता दुनिया के साथ डील करो पर दुनिया के जैसे ना हो जाओ। And he said, deal with the world, but do not be like them. कदी कदी ला भी लेंदा, कदी कदी लगा भी दिंदा, कदी कदी ਕੱਟ भी लेंदा। ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਇਨ ਲॉज ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਪੈਗ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ So ਮੈਨੂੰ people make lots of excuses when we got involved in the worldly activity. समझ आ रही है आपको? कहता दुनिया में जाओ, दुनिया के जैसे मत हो। And he said, go in the world, but do not like be them. यीशु कहता दुनिया में जाओ, दुनिया को यीशु के जैसा बना दो। And then Jesus said, go in the world and show them who I am. लेकिन अगर दुनिया में जाके दुनिया के जैसे बनोगे तो ये गिलास हो, बेइज्जती का बर्तन हो। And if you will go and become like them, you will. आपकी इज्जत कहाँ है? Where is your value? जब आप कहाँ हैं? होलीज ऑफ होलीज में हैं और So सिर्फ when- खुदा के लिए हैं। And when you are in a holies and holies place, मसीह लोगों ने अपनी बेइज्जती कराई हर जगह। कोई इज्जत नहीं है, कोई पसंद नहीं करता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं हमारी सही जगह क्या है। yes, amen. Yeah, because the Christian people don't know their और वो value. ये भी नहीं जानते कि हम लोग कौन है। हम इस पूरी कायनात में सबसे प्रेशियस हैं। And they forgot that who they are.
हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों को समझ आ रहा है? पहला यूहन्ना 5:18 कहती है कि जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं, पूरी आयत देख लेना, वहां लिखा है कि शैतान उनको छू नहीं सकता। 1 जॉन चैप्टर 5:18 क्या कहती है? जल्दी से देखिए फटाफट। 1 जॉन चैप्टर 5:18 और उसके बाद इफिसियों 2:2, इफिशियंस 2:2 लगा देना भाई, पढ़िए। जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। गुनाह का मतलब क्या है? खुदा की बात ना मानना, सीधी। वो करता है जो खुदा से पैदा, कौन? यीशु, उसकी इबादत करता। आगे पढ़िए क्या लिखा? शैतान उसको छू नहीं सकता। लेकिन शैतान तो झप्पी पाकर ही बैठा हुआ है। So we know that whoever is born from God doesn't sin, but he who was born of God keep himself. कौन सा बर्तन है वो? वो खुदा के इज्जत का बात। इज्जत का बर्तन, खुदा के जलाल में रहने वाला बर्तन। अगर ये बर्तन खुदा के जलाल से हट जाएगा तो अंधेरे में आ जाएगा, और अंधेरे में क्या आएगा? शैतान फिर पूरी जप्पी पा के रखता है। So we are the vessel of honor. If फिर we पास्टर जी move को us तंग from करते, this- पास्टर जी प्रार्थना करो, कमर दे दर्द होगी, कर्जा चढ़ गया, फलानी बीमारी होगी, ये हो गई। फिर पास्टर भी प्रार्थना करते 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 रहते हैं। फिर बाद में कहा पास्टर ठीक नहीं है, फलाने पास्टर दे गोल चल दे। And then you ask a pastor, pray for them, that because you're going from the hard time, and then pastor pray for us, but then you go to मैं the जहां next भी one. जाता हूं और वहां पे जब प्रार्थना का समय आता है, And so wherever I go, when it's come to the prayer, सबसे ज्यादा लंबी लाइन किसकी होती? मसीह लोगों की, and then where the long queue for all the believers. है ना? अभी क्या हो गया? दुष्ट आत्मा आ गई, बीमारी आ गई, उन्हीं के लिए प्रार्थना करते रहो। अभी मैं आके जाऊंगा, कोई इंडिया से और पास्टर आएगा, फिर वही लाइन में लगे हुए। Yes, very true. Yeah, the same people every time. come. पाकिस्तान से कोई आएगा, फिर वही लाइन में lगे हुए, And then if anybody come from Pakistan, it's the same people. है ना? Queue. कोई अमेरिका से आएगा, फिर वही लाइन में लगे हुए। बुरा हाल है लोगों का, समझ आ रही है? आज ऐसी हालत आ गई है। मैं अपने स्पिरिचुअल मेंटर की बात कर रहा हूं। कहते बेटा मैं एक जगह मिनिस्ट्री करने गया, वहां देखा सब लोग विश्वासी थे, सब हालेलुया चिल्ला रहे, गीत गा रहे, लेकिन जब प्रार्थना का समय आया सबने लाइन लगा ली। So I went, one of my mentors told me that one day I went to preach somewhere and was praying, and all the word they were तकरीबन believers. ज्यादातर लोगों में से दुष्ट आत्मा निकली। And then there's so many people, they are demon possessed. मैं हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है? And then I was shocked. विश्वासियों में दुष्ट आत्मा, And I thought that the how come we even विश्वासियों have में demon बीमारी, possessed? कर्जा, मुसीबतें, निराशा। And how come that the all the trouble come in there? एक विश्वासी में से दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, So one day we are demon possessed person is उसमें दुष्ट believer, आत्मा निकाल रहे थे। वो दुष्ट आत्मा पता की कहती है? and then the evil spirit कहती said, मैं तो जाना चाहती हाँ, मैनू छाड़ती नहीं है। वो कहती मैं जाना चाहती है, मुझे छोड़ती नहीं है। and he said I want to go but she doesn't let me go. अब पता क्या समय आ गया? अब समय ये आ गया है कि ये रेदर देन ये प्रार्थना करना कि दुष्ट आत्मा विश्वासियों में से निकला, So now rather than praying for the demon to leave the person, ये प्रार्थना करने का समय नहीं। we don't need to pray for अब that. ये प्रार्थना करने का समय है, विश्वासियों दुष्ट आत्मा से निकल आओ। समझ आ रही है? So we have to ask to the believer, leave the all. लंबी लाइन लगाई, पता नहीं लग समझ आता ये विश्वासी है क्या है, So it's very difficult to understand whether the believers or not. कौन सा बर्तन है। What kind of vessel you are. जब तक ये उसकी हजूरी में है, Until it's in the presence of the Lord. शैतान उसे छू नहीं Devil सकता। cannot touch it. शैतान उसके मोहल्ले में से भी नहीं गुजरेगा। Devil can't come लेकिन nearby. यहाँ पे तो जप्पी पा के रखा है, Here is the cuddling. क्योंकि Eh? दुनिया में रहना और अच्छा लगता है। Because you like to live in the world. समझ आ रही है आपको मेरी बात? Can you understand me? हालेलुया। Hallelujah. हम कौन सा बर्तन है? What kind of vessel we are? आदर का या बेइज्जती का? We are the owner or dishonor ये हमारे vessel. हाथ में है। This is in our hand. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उसने तो हमें आदर का बर्तन He बनाया। made us an honor vessel. हालेलुया। कितने लोगों को समझ आई बात? आइए एक आयत को और देखें, दूसरा करंथियों पहला अध्याय 22 आयत देखेंगे। सेकंड करंथियंस चैप्टर 1 वर्स 22 क्या कहती है? जल्दी से मैं खत्म करने वाला हूं, फटाफट निकाल के पढ़िए। हाँ पढ़िए बहन, उधर पढ़ लीजिए प्लीज, पढ़िए, सुनिए क्या लिखा है। सेकंड करंथियंस चैप्टर 1 वर्स 22, सुनिए क्या लिखा है। 2 Corinthians
चैप्टर 1 वर्स 22, जल्दी से। जिसने हम पर मोहर की है, मोहर क्या है? स्टैंप। Yeah. उसने अपने बेटे के खून से हम पर क्या मारी? स्टैंप। स्टैंप का मतलब क्या है? ये मेरी है, इसे कोई दूसरा छू नहीं सकता। Who also sealed us ऐसे ही है and ना? gave us the down payment of the Spirit in our उसने heart. स्टैंप मारा, बोला ये मेरा है, इसे कोई छू नहीं सकता। So we are being sealed. उसने अपने बेटे के खून से हम पे मोहर मारी है। पढ़िए And आगे we क्या been लिखा है, sealed पूरी us याद with the पढ़िए। blood of Jesus. हाँ, क्या दिया? बयाने में आत्मा दिया। Yeah. जब हम कोई जगह खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो हम उसका क्या देते हैं? एडवांस देते, टोकन देते, बयाना देते हैं। ऐसी है ना? है ना? बयाना देते हैं। बयाना देने का मतलब क्या है? कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आके इसको पूरा ले लेंगे। तो परमेश्वर ने भी अपने बेटे के खून से, एक्चुअली में हुआ क्या? उसने हमारे साथ अपने बेटे की मंगनी की है। Yes, amen. क्या किया उसने? So the Lord has engaged us with the Lord. क्या किया है? और मंगनी में क्या होती है? वाचा, कॉन्वेनेंट होती है। और बाइबल को जब ध्यान से पढ़ोगे, तो भी है। बाइबल में जो वाचा है वो खून से है। Yeah, amen, amen. So we have a covenant of the Lord with the blood. हमारी मंगनी यीशु से हुई है ना? परमेश्वर ने अपने बेटे के खून से हमारी मंगनी की So है। God has engaged us with the blood of Jesus. हालेलुया। किससे मंगनी हुई? Hallelujah. यीशु से। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब आपकी मंगनी हुई थी So when you've been engaged, तो बदले में क्या मिला था? अंगूठी मिली थी ना? ring. Yeah. और उसने बदले में हमें क्या दिया है? अंगूठी, जिसका नाम रूहुल कुदस, पवित्र आत्मा है। So when we engage, we got हालेलुया। the Holy उसने Spirit. अपने बेटे के खून से हमारी मंगनी की, And He gave us, engaged us with the blood of Jesus. छाप लगाई, And He sealed us. और बयाने में रंग दी, उसका नाम रूहुल कुदस And then है। He gave us the Holy Spirit. हालेलुया। आपको पता है रूहुल कुदस का काम क्या है? You know the Spirit work of Holy Spirit? जब हमारे कल्चर में In our culture. जब मंगनी हो जाती है लड़की की, And so when we get engaged, तो पहली चीज उस लड़की को बोल दिया जाता है, बेटा अब यारों दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाना, अपने आप को सेपरेट करो। Amen. So now we engage and they told that person that do not go engage with इधर other उधर नहीं जाना people. है, Do not go with other people. अपने आप को अलग करो। Separate yourself. तैयारी का समय है। And it's prepare किस yourself. चीज के लिए? शादी के लिए तैयार Yes, करो। prepare yourself for the wedding. ऐसी है ना? Yes. amen. परमेश्वर ने अपने बेटे के खून से हमारी यीशु से अपने बेटे से मंगनी की है, Amen. And the Lord Jesus engaged us with the blood of, और बयाने में अपना आत्मा दिया है। and then He gave us the Holy Spirit. अब ये लड़की जिसको मंगनी हो गई है, And the girl who been engaged, इधर उधर नहीं जाना है, don't go anywhere. शादी के लिए तैयार होना है। And we're going to prepare और for जब the wedding. शादी के लिए तैयार होती है And we're getting ready तो for the कहाँ wedding. जाती है वो? Where's she gonna go? My- ब्यूटिशियन के पास जाती है ना? Yeah. क्या करने के लिए? जो दाग है, झुर्री है, कलंक है, वो निकल जाए या छुप जाए? छुप जाए, मिट जाए, छुप जाए। मिट जाए, खत्म हो जाए. अगले दिन जब बाहर आती है, शादी होकर नहा के बाहर आती है, मजाक कर रहा हूं, लेकिन वो किसके पास जाती? ब्यूटिशियन के पास, She go to the- छुपाने के लिए। Yeah. और आपको पता है परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, और जो पवित्र आत्मा है इस पूरी कायनात का सबसे बेस्ट ब्यूटिशियन है। So we have the Holy Spirit is like a beautician to us. हालेलुया। Hallelujah. इफिसियों 5 अध्याय उसकी 26-27 आयत जब आप पढ़ते हैं, When we read in Colossians, वो कहता है वो वचन से, कौन? पवित्र आत्मा, वो वचन से हमको धोएगा। Amen. With the word of God, He will cleanse us. पढ़िए, एक बार पढ़िए, Ephesians chapter 5 verse 26 and 27। क्या कहता है? जल्दी से, जल्दी से। पानी से, कलाम क्या है? पानी है। कलाम जो है वो एक क्रीम है, वो फेस पैक है, वो हमारी आत्मा में लगाया जाता है। तो क्या करने के लिए? पढ़िए। हाँ, साफ कर कर मुकद्दस बनाए। और आगे पढ़िए। ऐसी जलाल वाली दुल्हन कलीसिया बनाए। हाँ, आगे कौन? रूहुल कुदस खड़ा होगा यूं, यीशु हवा बादलों में आने वाला है, और हम रूहुल कुदस हमारे साथ ऐसे खड़ा होगा से रिसीव करने के लिए। Amen. Amen. है ना? सोच के देखिए, पढ़िए पढ़िए दोबारा। हाँ पढ़िए भाई। हाँ, कैसी? हाँ Amen. हाँ हाँ,
हालेलुया। Amen. Amen. वो ऐसा ब्यूटिशियन है जो हमें तैयार करेगा, वो छुपाएगा नहीं, निकाल देगा। Yes, yes. So the Spirit will cleanse us with all our iniquity. आपको पता है एक शादी होने वाली जो हवा बादलों में होगी। Amen. Amen. You know the wedding is happening. It's in the heaven, हालेलुया। कितने in लोगों the को पता है? sky. हवा बादलों में एक शादी होने वाली है। कितने लोगों को पता है? वो कब होगी? जल्दी होने वाली है। हालेलुया। It's happening. उसका आने का समय जल्दी है। It's near. और एक शादी हवा बादलों में होगी, There's सब a wedding. देखेंगे उसको। There is a wedding going to happen in the sky. Everybody Hallelujah. can see it. हालेलुया। Hallelujah. कौन आ रहा है? Who's coming? दूल्हा आ रहा है The Lord is अपनी coming. दुल्हन को लेने। The groom is coming वो for his दुल्हन bride. जिसको उसने दुनिया से अलग किया, The bride who separated from the अपने world. एक पवित्र खून से धोया, छाप लगाई और बयाने में आत्मा दिया है। आत्मा इसलिए मिला है ताकि वो हमें तैयार करे, ताकि हम भी जब वो आए और हवा बादलों में उसके साथ उठाए So he जाए। cleansed us with the blood of Jesus and give us the Holy Spirit so we Hallelujah. can meet him on the sky. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग तैयार हैं उस शादी के लिए? How many people are ready for the wedding? हालेलुया। हम कौन सा बर्तन है? What kind of vessel we हम वो are? बर्तन है जिसको खुदा ने अपने लिए चुना है। We are the chosen अपने vessel. बेटे के पवित्र और पाक खून जो पूरी कायनात का सबसे कीमती खून है उससे धोया है, अपने पवित्र आत्मा से मसा कर कर अपने लिए अलग किया है। We are the chosen vessel, been separated from the world. हम ऐद का संदूक है जिसमें खुदा का जलाल रहता है और उसकी सही जगह क्या है? We- होलीज ऑफ होलीज। We are the ark of the covenant and we live in the हम holy वो दुल्हन हैं We are the जिसको bride. दूल्हा जल्दी लेने, The groom is coming. जिसमें ना तो कोई दाग है ना जुर्री है। है। अगर दूल्हे को पता लग जाए जिससे मंगनी हुई है वो तो कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, दुनिया में रहती, क्या शादी होगी? So if the groom find out that the bride is going छुप छुपा के everywhere काम कर लेगी वो, and then she be doing so many लेकिन works उससे without- कोई नहीं छुप सकता। we can't hide from the God's eyes. उससे कोई नहीं छुप सकता। Nobody can hide from God's eyes. कितने लोगों को समझ आया? How many people हम लोग understand? कौन है? We are who we are. हम लोग खास लोग हैं, हम We are दुनिया के special नहीं people. हैं, हम सिर्फ उसकी महिमा के लिए। We are not worldly. We are Hallelujah. only to glorify the Lord. हालेलुया। Amen. पास्टर जी ने प्रकाशित वाक्य पढ़ा, Pastor read मैं Revelation. समझ गया पवित्र आत्मा चाहता है कि हम जान ले कि हम लोग कौन हैं। So I understand what कितने लोगों को God समझ wants आई? us to know. हम अहद का संदूक हैं, हम We are वो the Ark of बर्तन हैं Covenant. जो खुदा के लिए मसा किए गए हैं, हम उसकी दुल्हन हैं। We are the bride. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों को समझ आया? How many people अब understand? दुनिया में नहीं रहना हमें, We don't live in the world. अब अपने आप को दुनिया से अलग करना है Separate us from the world और अपने आप को तैयार करना है। and start preparing yourself. आइए अपनी आंखों को बंद Come करें, on, close your सभी eyes, अपनी all आंखें of बंद you. करें। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। पास्टर जी आगे आ जाइए प्लीज। सभी अपनी आंखें बंद रखें थोड़ी देर के लिए। अगर आज परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है If the word of God speak to you तो today, अपनी आंखों को बंद कर लें you close your eyes. और प्रभु से कहें, प्रभु अगर आप महसूस करते हैं कि आप अभी भी दुनिया में हैं And if you think you're still in the world, तो वापस आ जाइए। come back. पास्टर जी ने गीत गाया था कि खुदा आज चाह रहा है कि कोई वापस आए। And God wants us to come back. खुदा चाहता है कि आप लोग भी वापस लौट आए। And God wants you to come back. आपकी इज्जत दुनिया में नहीं है, You have no value in the world. आपकी इज्जत उस खुदा की हजूरी में है। Amen. हालेलुया।